امریکہ میں T20 ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا۔ افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ اور رقص، ٹورنامنٹ میں شریک ملکوں کے پرچم اٹھائے، گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا گیا۔ میچ کے آغاز سے پہلے امریکہ اور کینیڈا کی ٹیموں کے ترانے بجائے گئے۔ سرچ انجن گوگل بھی کرکٹ کے رنگ میں رنگ گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں کینیڈا کے 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی بیٹنگ جاری۔ کینیڈا کے نونیت دھلیوال 61 اور نکلسن کرٹن 91 رن بنا کر نمایاں رہے۔ امریکہ کی جانب سے علی خان، ہرمیت سنگھ اور کوری اینڈرسن نے ایک ایک وکٹ لی۔ پاکستانی نیاد کینیڈین کپتان سعد بن ظفر کا کہنا تھا، پہلی بار ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ امریکی کپتان مونانگ پٹیل نے کہا، T20 ورلڈ کپ کھیلنا ایک حیرت انگیز احساس ہے۔ دوسرا میچ آج شام 7:30 بجے ویسٹ انڈیز اور پپوا نیو گنی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ جمعرات کو امریکہ کے خلاف ڈالس میں کھیلے گا۔ پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 9 جون کو نیو یارک میں ہوگا۔ یقین ہے T20 ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں، ورلڈ کپ کے لیے روانگی سے قبل پاکستان ٹیم کی میزبانی کی۔ کپتان بابر اعظم اور ٹیم کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ پاکستان ٹیم سے بیٹنگ اور بالنگ ٹپس بھی لی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنا اینتھم جاری کر دیا۔ اینتھم کی تھیم سرڈی واریے رکھا گیا ہے۔ نغمہ پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار اور علی عصمت نے گایا۔ شیخ مجیب ویڈیو تنازع میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں تضادات۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی اور ترجمان رؤف حسن نے بانی پی ٹی آئی کو معاملے سے لاعلم قرار دیا۔ رؤف حسن نے تو یہ تک کہا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ملک سے باہر سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ علی محمد خان نے معاملے کو غلط فہمی قرار دیتے ہوئے کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سابق صدر عارف علوی نے ان سب کے برعکس ٹویٹ کا دفاع کیا، کہا بانی پی ٹی آئی نے کون سی غداری کی، صرف حمود الرحمان کمیشن پڑھنے کو ہی تو کہا ہے۔ ویڈیو کس نے اپلوڈ کی؟ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ایف آئی اے طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کو منگل صبح 11 بجے طلبی کا نوٹس جاری۔ نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریاست اور اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر اکسایا جا سکتا ہے۔ ایف آئی اے ٹیم بانی پی ٹی آئی سے بھی تفتیش کے لیے اڈیالہ گئی تھی۔ بانی نے وکیلوں کی غیر موجودگی میں ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کو اس ویڈیو کے کمپلیٹ کانٹینٹ سے آگاہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ ہی وہ کوئی پوسٹ وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ It is not been recorded or uploaded by عمران خان۔ ویڈیو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اپلوڈ نہیں کی گئی۔ ان کے پاس جیل میں موبائل فون اور نہ انٹرنیٹ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی۔ بانی کو اپلوڈڈ ویڈیو کے کانٹینٹ سے آگاہی نہیں تھی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا کہتے ہیں، ٹویٹ میں کہا گیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں۔ نواز شریف اور خواجہ آصف نے بھی ماضی میں اس طرح کے بیانات دیے۔ ٹویٹ کا مقصد اداروں کو نشانہ بنانا نہیں۔ لیگی سینیٹر عفنان اللہ نے کہا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر اب سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ حالات خراب ہیں، ملک ٹوٹنے والا ہے۔ حکومت کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی پیشکش، آئیں بات چیت کریں۔ مذاکرات کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا کسی کو غدار نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں مذاکرات کریں، وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کرنی ہے؟ مکتی واہنی اور کبھی پاکستان کے 2 لفظ ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑا تناؤ میں کمی کریں، کم از کم ٹی وی پر آ کر کہہ دیں ہمارا ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ خان نہیں تو پاکستانی، یہ کیسے مہم ہے؟ ہم کہتے ہیں پاکستان نہیں تو کوئی نہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، پی ٹی آئی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ٹویٹ کو اون کریں ہیں نہ ڈیلیٹ، یہ چوری کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی۔
9 मई के मुल्ज़मान तो KPK के वज़ीर आला भी बन गए। अदालतों से अपील है 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं दी जाएं। जाली मैंडेट वालों से बात ही नहीं होगी। पीटीआई के रद्दमल कहा, कठपुतलियों का बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना मुज़ाकराखेज़ है। गुलामों के पास इख्तियार है, ना कौलो फेल की कोई वक़्त। आए रोज़ चीखो पुकार बता रही है, नाजायज़ इक़्तिदार खात्मे के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ये है, उसका मुंशी पेट्रोल कीमतों में कमी का फैसला बरक्स करता है। मुज़ाकरात का चूरन बेचने के बजाय ये टोला कौम से जराइम की माफ़ी मांगे। लाइव अदालती कार्रवाई ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई नैब तरमीम दरख्वास्त में कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की दरख्वास्त पर उन्हें वीडियो लिंक सहूलत की इजाज़त दी गई। अचानक केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। बानी पीटीआई ने भी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नैब तरामीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। इम्कान था सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तस्करा किया। हैदराबाद जाने में बहनों के ख्वाब उजाड़ती। 10 साल के अब्दुल रहीम की बहन शिद्दत गम से निढाल कहती है, सोचा था भाई बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, सब अपने बच्चों को निकाल कर ले जा रहे थे, किसी ने मेरे भाई को नहीं बचाया। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सिविल अस्पताल में 14 जख्मी अब भी इलाज, 8 की हालत फीशनाक। हैदराबाद में आजान की नमाज जनाजा में एमकेएम रहनुमाओं की शिरकत। हैदराबाद रिजवी ने कहा, गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली गई। हैदराबाद के अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन गए। कराची में भी जख्मियों की बेहतर देखभाल नहीं की गई। कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। गुलशन इकबाल में नौजवान ने बेकरी से सामान खरीदा, कोल्ड ड्रिंक लेना भूल गया। दोबारा बेकरी आया, वापसी पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने ताकुब किया। एक डाकू ने तलाशी ली, दूसरा असलहा ताने बैठा रहा। नौजवान की मुसलसल मज़ामत पर मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोली मार दी और 150 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। जराइम के खिलाफ नाकस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल। SSP ने महकमाना इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। नॉर्थ नाज़िबाद में शाहीन पोश का 2 डाकू मारने का दावा। पाक बहरिया जहाज यरमूक का शिमाली बहर अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने ऑपरेशन में 380 किलो मंशियात जब्त की। जब्त की गई मंशियात की बैन अल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। साइबर क्राइम की रोकथाम। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम पाकिस्तानी अफसरों को तरबियत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। इंसदाद मंशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए फ्रॉम माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटी का लफ्ज़ है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज़ ये याद रखें, आईन में आप और मेरे में कोई फ़र्क नहीं। हमारे लिए रियासत मदीना से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती।
आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आएँ। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चलें तो बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं होगी। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। नौशेर फिरोज में चेयरमैन बोर्ड नवाब शाह पर हमला। फारूक हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया गया। फारूक हुसैन शाह ने बताया, शिकायत मौसूल होने पर आया तो माफिया ने इम्तिहानी सेंटर में दाखिले से रोका और हमला किया। 50 तलबा को नकल करते पकड़ा, एक उस्ताद को भी पकड़ लिया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। कराची में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद के ड्यूटी देने का इंकशाफ। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। हर साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के शिकारपुर में पोलियो केस की तस्दीक। हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। रमज़ान की 5वीं मुहिम का आगाज 3 जून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 23, बलूचिस्तान के 20, सिंध के 16 और पंजाब के 6 अजला और इस्लामाबाद में मुहिम चलाई जाएगी। 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली 3 रुपए 76 पैसे मजीद महंगी। अवाम 40 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफे अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। न्यापरा ने विफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। जून से अगस्त 2024 तक सार्फिन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग। कराची के शहरी तब गए। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कुरंगी एक्सप्रेसवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलोच कॉलोनी तक एहतजाज करके सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, सफर करने वाले भी रुक गए। मवाद कोर्ट में भी एहतजाज। मकीनों ने हब रिवर रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा। गैरिलानी लोड शेडिंग के खिलाफ पावर हाउस चुरंगी पर भी एहतजाज। शहरियों ने इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करके नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अजमेर नगरी जाने वाली सड़क भी कई घंटे बंद रखी। मुल्क के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर और बुरेवाला में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। लिया, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, झेलम और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद में 43, पिशावर, रहीमयार खान और नवाबशाह में पारा 42 डिग्री को छू गया। भारत में शदीद गर्मी। इंतखाबी हमले के 25 एहलकारों समेत 87 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। हजारों अफराद बीमारियों में मुब्तला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में हीट वेव की लपेट में। मशरकी भारत में गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। दिल्ली में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 52 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में IT कंपनी के AC में गर्मी से आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। लोग अपनी मदद आप के तहत शोले बुझाने की नाकाम कोशिश करते रहे। भारत में इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 109 निश्चित पर हुक्मरान इत्तेहाद आगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद को 75 निश्चितों पर बढ़ोतरी हासिल, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को 34 निश्चितों पर बढ़ोतरी हासिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक
بی جے پی اور اتحادیوں کو 543 میں سے 350 سیٹیں ملنے کی توقع ہے۔ اپوزیشن اتحاد 120 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر سکے گی۔ سادہ اکثریت کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں۔ افغانستان میں کشتی ڈوبنے سے خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کشتی نگرہار کے علاقے میں دریا میں الٹ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے 5 لاشیں نکالی۔ کشتی میں 25 افراد سوار تھے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف پیرس میں بڑا مظاہرہ۔ ہزاروں افراد نے بارش میں بھیگتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا۔ مظاہرین نے جنگ بندی اور حکومت سے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی جھنڈوں کے بہار فضا میں آزاد فلسطین کے نعرے گونجتے رہے۔